Hey guys, this is CA Amit Habilya, and today we are going to discuss the comparison between sole proprietorship, OPC, LLP and private limited. Now, before you start any kind of business, you're always worried by one important question: what should be the business structure? Now, depending upon the nature of your business, depending upon who you want to take on as a partner, depending upon where your head office will be, depending upon where your investment is coming from, is it bootstrapped or someone is going to invest in your business, also depending upon how you want to treat your legalities and your liabilities. So all these questions you should be able to answer these before you actually decide upon a business structure. So that's why today I am here. So this is one of the first conversations which I do have with my clients. So also with clients who are already in the business and they want to change their business structure depending upon maybe better tax planning, or they are at a verge of expansion and they are like, okay, we are not happy with the current business structure and we would like to explore more. So this is the first session which I do have with my clients, and I'm going to share a bit of it here, and I really hope that you can take value from this. So let's get started. So basically ये मैंने कैसे स्ट्रक्चर किया है कि जैसे हमको स्कूल में वो डिस्टिंग्विश के आंसर्स, क्वेश्चंस आंसर्स आते थे, सिमिलर टू दैट देयर आर 10-11 पॉइंट्स जो मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है while we discuss and we find out what really works and does not work for you under all under these 4 options, that is sole proprietorship, OPC, private limited, LLP. तो ये जो 10-11 points है that हम लोग वो discuss करेंगे. So let's get started. So जो first point है, that is the act. Now under sole proprietorship there is no act. सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ये कंसर्न, ये जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, ये कहीं पे भी रजिस्टर मतलब कहीं पे भी इसको रजिस्टर नहीं करना है, उसके लिए कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर एक्ट नहीं बनाया गया है. द सेकेंड इज ओपीसी. ओपीसी को हमें वी हैव टू रजिस्टर एन ओपीसी, दैट इज़ अ 1% कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, दैट इज़ कंपनीज एक्ट 2013. फिर बात आती है LLP की, दैट इज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. LLP को रजिस्टर किया जाता है LLPs एक्ट 2008. फिर आती है प्राइवेट लिमिटेड की बात, दैट इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड और अ लिमिटेड कंपनी. इसको रजिस्टर किया जाता है अगेन कंपनीज एक्ट 2013. सो सोल प्रोप्राइटर ऑब्वियसली नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड. पार्टनरशिप फर्म को यू हैव टू रजिस्टर इट ऑनलाइन. LLP, प्राइवेट लिमिटेड एंड OPC, ये तीनों को ही रजिस्टर किया जाता है MCA पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे. ये आप काफ़ी बार सुनेंगे MCA, सो दैट्स बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. नाउ डेजिग्नेशन. सोल प्रोप्राइटर में आपका डेजिग्नेशन एज अ बिजनेस ओनर it will be same as that of you as an individual. जो आपका इंडिविजुअल पैन नंबर है वो ही आपके बिजनेस का भी पैन नंबर होगा. सो आपको कोई नया पैन एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है. इन अ पार्टनरशिप फॉर्म आपका डेजिग्नेशन होगा एज ऑफ अ पार्टनर. तो आप इंडिविजुअली आप एक इंडिविजुअल हो, और आप जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो, योर डेजिग्नेशन विल बी एज दैट ऑफ अ पार्टनर. आपका पार्टनरशिप फर्म का एक अलग पैन कार्ड होगा. ओके. फिर बात आती है LLP की. अगेन इन एन LLP आप पार्टनर होंगे, LLP का भी अलग से पैन कार्ड होगा. फिर बात आती है OPC की. नाउ OPC में यू विल बी अ डायरेक्टर. OPC में आपके अलावा एक नॉमिनी की भी ज़रूरत है. सो सपोज समथिंग हैपन्स टू यू, तो फिर नॉमिनी पे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगे कंपनी के. सो एंड इन अ प्राइवेट लिमिटेड you are one of the directors. Private limited में minimum 2 directors are required. Okay, so now definition.
The third point is definition. Now sole proprietor में basically sole proprietorship is a business where you are the whole and soul. So आपका जो भी whatever your responsibilities are as an individual, similarly आप sole proprietor में जब सारा business करते हो, those responsibilities will merge with your individual identity. ओके एंड सोल प्रोप्राइटरशिप यूजुअली छोटे बिजनेसेस जैसे किराना स्टोर है, या अगर आप कंसल्टेंट हो या आप क्लिनिक चलाते हो, सो ये दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस में आप सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर सकते हो. फिर बात आती है पार्टनरशिप फर्म की. तो पार्टनरशिप फर्म बेसिकली टू और मोर देन 2 पार्टनर्स जब मिलते हैं पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा जो कॉन्सेप्ट है मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, आई नीड अ पार्टनर, या फिर आपने कोई चीज़ को फाउंड की है, तो फॉर सच काइंड ऑफ बिजनेसेस पार्टनरशिप फर्म वर्क्स ब्यूटिफुली. ऑल्सो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कराने का देयर इज़ नो कंपल्शन. सो आप इसको रिजॉल्व करना बहुत ही ईजी है. तो अगर लेट्स से आप आपने किसी के साथ कुछ को फाउंड किया, आपने पार्टनरशिप फर्म बनाया एंड यू फील लाइक हाँ कि अभी दिस इज़ नॉट वर्किंग, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, कुछ झगड़ा हुआ है, वट एवर, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन्स, देन यू कैन ईजिली रिजॉल्व द पार्टनरशिप फर्म. एंड अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस इट्स गोइंग टू एक्सपैंड, इट्स गोइंग टू गेट बिग, then obviously you can convert your partnership firm into either of the other corporate structures. So ये हुई पार्टनरशिप फर्म की बात. There are minimum 2 partners, maximum 20 partners required. So ये हुई पार्टनरशिप फर्म की बात. अब आते हैं LLP पे. So LLP is basically a better version of a partnership firm, लेकिन इसमें compliance ज़्यादा है. आप LLP में जैसे पार्टनरशिप फर्म में भी आप कैपिटल लेके आते हो बिजनेस में, LLP में भी आपको कैपिटल लाना है बिजनेस में. एंड लेकिन LLP अगेन द डेटा, जो भी LLP का डेटा रहेगा, दैट्स अ पब्लिक डेटा. यू कैन पे 50 रुपीज़ एंड गेट दीज फाइनेंशियल्स of any LLP and you can basically look at them. But saying that, for मोस्टली जो CA फर्म्स है, CS फर्म्स है, लॉ फर्म्स है, यूजुअली ये LLP होते हैं. सो अगर आपको किसी अननोन पर्सन को एज अ पार्टनर इंक्लूड करना है तो LLP विल वर्क ब्यूटिफुली फॉर यू. अब बात आती है OPC की. OPC इज़ बेसिकली ये एक रिफाइंड वर्जन है सोल प्रोप्राइटर का. लेकिन अगेन जैसे सोल प्रोप्राइटर में जैसे मैंने बताया आपका इंडिविजुअल आइडेंटिटी और बिजनेस आइडेंटिटी मिक्स होता है. OPC में दिस इज़ नॉट द केस. OPC में आप you want the privacy in your business, you don't want to include anyone, but at the same time आपको अपना liability limited रखना है, then OPC is the best structure for you. फिर आती है बात प्राइवेट लिमिटेड की. नाउ प्राइवेट लिमिटेड में देयर आर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स एंड आप किसी को डायरेक्टर या शेयर होल्डर भी बना सकते हो. मतलब समवन कैन बी द ओनर ऑफ द कंपनी as well as they can be the director of the company, or someone can just be a director or just be a shareholder. ये जो बात है ये प्राइवेट लिमिटेड को बहुत ही स्पेशल बनाती है. बिकॉज जैसे अगर आपको कोई फॉरेन फंडिंग चाहिए या VC वेंचर कैपिटलिस्ट आपके कंपनी में कुछ पैसा डाल रहा है, उसको आपको कौन सा ओहदा देना है. यू वांट टू मेक देम अगर आप ओनर बनाते हो, अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो अपना शेयर्स, देन आप कितना डाइल्यूट कर सकते हो, दैट परसेंटेज, एग्जैक्ट परसेंटेज, ये सिर्फ आप प्राइवेट लिमिटेड में कर सकते हो. LLP में ये ऑप्शन नहीं दिया गया है. ये LLP में शेयर्स वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है. So this makes private limited really special. So if you are thinking of going big, you want investors, you want to go international, then private limited is the one for you. So ये बात हुई definition की. अब आती है बात registration की. सो सोल प्रोप्राइटर को रजिस्टर करना काफ़ी सिंपल है. आपको यू विल नीड 2 गवर्नमेंट प्रूफ्स. जैसे अगर आपके पास गुमास्ता है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस है, या फिर आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, तो अगर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट है, यू कैन ईजिली गेट योर बैंक अकाउंट ओपन. तो बस सोल प्रोप्राइटर में सिर्फ आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है एंड योर वर्क इज़ डन. सपोज योर नेम इज़ मिस्टर अजय और आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है मारुति सेरामिक्स फॉर एग्जाम्पल.
तो आपका जो बैंक का नाम है वो मारुति सेरामिक्स रहेगा, लेकिन आपका नाम अजय है। सो दैट इज़ हाउ ये आपको ये बिजनेस आइडेंटिटी मिल जाएगा, लेकिन दोनों का पैन सेम रहेगा। अब बात आती है पार्टनरशिप फॉर्म की। पार्टनरशिप फॉर्म को आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। सो द एंटायर प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड इज़, पहले ये ऑनलाइन नहीं था, अब कम्प्लीटली ऑनलाइन हो गया है, लेकिन एक्चुअल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ऑल्सो इंडिया में मोर देन 80% ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म्स रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन ऑब्वियसली लीगैलिटी के पर्पस के हिसाब से यू शुड ऑलवेज गेट अ पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड, अदरवाइज आप कोर्ट में सू नहीं कर पाओगे। बट सेइंग दैट इफ़ यू आर गेटिंग इनटू MVP, दैट इज़ अ मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, तो पार्टनरशिप फॉर्म अगर आप अनरजिस्टर्ड रख रहे हो एंड वंस योर प्रोडक्ट आपको थोड़ा ट्रैक्शन मिल रहा है, देन यू शिफ्ट टू अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, इन दैट केस इट्स कम्प्लीटली फाइन। सेइंग दैट रजिस्टर्ड फर्म और अनरजिस्टर्ड फर्म में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, देयर इज़ इन टैक्स और लीगैलिटीज़ में इट्स ऑलमोस्ट सेम। अब बात आती है OPC की। OPC को आप रजिस्टर कर सकते हो MCA की वेबसाइट पे ही। द एंटायर प्रोसेस इज़ ऑनलाइन एंड सिमिलरली LLP और प्राइवेट लिमिटेड में भी पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन है एंड पूरा रजिस्ट्रेशन जो होगा वो होगा MCA की वेबसाइट पे। मोस्ट ऑफ OPC, LLP या प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्ट्रेशन को अराउंड 10 से 15 दिन लगते हैं। कॉस्ट वाइज ये सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप से थोड़ा ज़्यादा है। अब बात आती है नेम। आप अपनी कंपनी का क्या नाम रख सकते हो अंडर डिफरेंट बिजनेस स्ट्रक्चर्स। सोल प्रोप्राइटर में आप कुछ भी अपना नाम रख सकते हो, देयर इज़ नो रियली लिमिटेशन, देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स विद द सेम नेम। लेकिन अगर आप कोई नाम सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि भाई मुझे इसका बाद में ट्रेडमार्क करवाना है, देन इट इज़ ऑलवेज बेटर टू चेक कि ये नाम पे ट्रेडमार्क हुआ है कि नहीं। अदरवाइज आप एक बार अपना जब फर्म शुरू कर देंगे, आप अपना ब्रांडिंग करेंगे, उसके बाद आप जब ट्रेडमार्क करने जाओगे वो ऑब्जेक्ट होगा एंड यू विल नॉट गेट द नेम। सो सोल प्रोप्राइटर में दिस इज समथिंग यू शुड टेक केयर ऑफ। पार्टनरशिप फर्म में अगेन द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज, इज जस्ट दैट अगर आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो तो आप उसके सफिक्स में प्राइवेट लिमिटेड या LLP नहीं लगा सकते हो। OPC, प्राइवेट लिमिटेड और LLP की जब बात आती है तो जो आप नेम आपको जो चाहिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बिकॉज देयर आर लैक्स ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन दी MCA, और वो अगर आपका नाम उनसे सिमिलर भी हुआ तो वो आपको नाम नहीं मिलेगा। ऑल्सो अगर वो आपका नाम का ट्रेडमार्क भी है तो भी वो नाम आपको नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ लाइक रियली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अगर आपको OPC, LLP या प्राइवेट लिमिटेड बनाना है तो यू रियली डू हैव टू गेट अ यूनिक नेम। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, आपका बिजनेस का नाम कुछ भी हो सकता है। सो इट कैन बी मारुति कॉमर्स रिटेल प्राइवेट लिमिटेड एंड आपका ब्रांड नेम हो सकता है अजय को। तो ये आपका जो एक्चुअली प्राइवेट लिमिटेड का नेम है और जो आपका ट्रेडमार्क है, आपका जो ब्रांड नेम है, ये कम्प्लीटली अलग हो सकता है। देयर इज़ नो कंपल्शन कि दोनों सेम हो। नेक्स्ट पॉइंट एंड ये सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ अ लीगल एंटिटी और द लायबिलिटी। जैसे मैंने बताया, सोल प्रोप्राइटर में आपका इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड योर बिजनेस आइडेंटिटी इज़ द सेम। अगर आप किसी को इफ़ यू ओ समवन फ्रॉम योर बिजनेस और आपका बिजनेस की सारे असेट्स ख़त्म हो जाते हैं, देन आपके पर्सनल असेट्स भी अटैच किए जाएंगे। सो यू योरसेल्फ आर पर्सनली लायबल फॉर योर बिजनेस लायबिलिटीज़। जब पार्टनरशिप फर्म की बात आती है, इज़ द सेम थिंग, देयर इज़ नो प्रोटेक्शन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन जब बात आती है OPC, LLP और प्राइवेट लिमिटेड की, तीनों ही केस में जब आप शेयर होल्डर बने, जब आपने शेयर कैपिटल इन्वेस्ट किया, you can only be held liable to that extent. So suppose I have invested 2 lakh rupees as share capital in my company and the company closes down. So I am only responsible for those 2 lakh rupees. There can be no problem or no attachment on my personal property as a director or a shareholder.
सो ये बात हो गई लीगैलिटीज़ की. एंड so the next is members. Sole proprietor में you are the whole and sole member. Partnership firm में there are 2 partners, maximum 20 partners. OPC में there is 1 director and 1 nominee. Private limited में there has to be at least 2 partners. Okay. LLP में there has to be at least 2 partners and there can be unlimited number of partners. Private limited में there has to be at least 2 directors. LLP में there has to be at least 2 partners and maximum number of partners पे कोई भी upper limit नहीं है, can be innumerable. अब बात आती है टैक्सेशन की. सोल प्रोप्राइटर में स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होंगे. पार्टनरशिप फर्म में 30% टैक्स रेट लगता है. LLP में अगेन 30% फ्लैट टैक्स रेट लगता है. OPC और प्राइवेट लिमिटेड में टैक्स रेट थोड़ा सा कम है. इट कैन बी आइदर 22% और 25% डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशंस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर सूटेबल फॉर व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस. तो जैसे मैंने बताया, सोल प्रोप्राइटर इज सूटेड फॉर स्मॉल बिजनेसेस लाइक अ किराना स्टोर, क्लिनिक, कंसल्टिंग. LLP is usually for professionals like CA, CS, lawyers, pharmacist. Then private limited is basically when you want international you want to go international, you want to go into big exports, or you want multiple branches in different countries. आपका पोलाइजन ऑफिस ओपन करनी है, या फिर you want that your shares needs to be diluted to a certain extent, or you want to go public, right? So ये सारे cases में private limited is the best option. OPC is for small entrepreneurs who want their businesses in a better structurized way, but they don't want to take a major responsibility and they want their liability to be limited. The next is setup and annual cost. Now, sole proprietor is the cheapest of all, obviously. The setup and annual cost can be around 2 to 4,000 rupees. Your partnership firm setup cost can be around 7 to 10,000. LLP, OPC and private limited setup cost is around 10 to 15,000. Annual cost, I will not comment because annual cost depends upon the quantum of your business as well. So yeah, so this is it, and I hope I have added value with this session. And before deciding on what business structure you want to go for, these are the points you must think about. And yeah, so please do like, subscribe to my channel if you like the content, and thank you.